رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب. باپا آج سوال کون کرے گا؟ وہی نہ کرے رسالہ بیچنے والے. سبحان اللہ. پاپا لگتا ہے آپ رسالہ بیچنے والوں سے بہت زیادہ آپ کا دل خوش ہوا ہے. لوگ جو دعوت اسلامی سے وہ نہیں ہے نا منسلک، ان تک پہنچانے کے ذرائع میں سے ایک بہترین ذریعہ ہے. ماشاء اللہ. وہی سہولت ہوتی ہے، لینے جاؤ تو لے لیتے، ورنہ دکانوں پہ تلاشنے کا ذہن کس کا ہوتا ہے؟ بھائی رسالہ بیچنے والوں کی آج تو عید رات ہے. اگر بڑھنا ہو ان میں نیت کوئی کرتا ہو مزید، اس کو بھی اجازت دے دے. یعنی باپا اپنے ہفتے میں کم از کم وہ جو آخری بات بیان کی تھی ایک سٹاپ بیچ دے. ایسے ہی دیکھو چھٹی میں جیسے کہ اور کام دھندا ہے، دکان ہے، نوکری ہے، چھٹی تو ملتی ہے نا، اس کا فائدہ اٹھا لے، کوشش کرے. کبھی ویسے چھٹیاں آ جائیں، سرکاری چھٹیاں بھی آتی ہیں، بڑی راتیں آتی ہیں، بڑے دن آتے ہیں. بسیں تو کب بند ہوتی ہیں؟ تو عید کے دنوں میں تو زیادہ رش ہوتا ہے تفریح گاہوں کی طرف جانے والی بسوں میں. جب مدنی قافلوں میں جائیں تو اس میں بھی یہ ترکیب ممکن ہے. مدنی قافلے بھی بسوں میں سفر کرتے ہیں تو ان میں بھی اگر چاہیں تو ترکیب بن سکتی ہے. کوئی اسلامی بھائی اس طرح بیچے. مگر بھی سکتے ہیں مدنی اسلامی بھائی. قافلوں میں بیچنے کے لیے میری یہ مطلب تاکید ہے کہ نو پروفٹ نو لاس، تاکہ یہ مدنی قافلے پر کوئی بات نہ کرے. نہیں کہہ دیا جائے کہ ہم نو پروفٹ نو لاس، ہم نکلے اللہ کی راہ میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں تحریری طور پر بھی نیکی کی دعوت آپ کو دیں، اور قسم کھا لے کہ واللہ ہمارا اس میں کوئی پائی پیسہ نفع نہیں ہے، صرف دین کی تبلیغ کے لیے ہم آپ کو جتنے کا لیا اتنے کا دے رہے ہیں. تو لوگوں کو یقین آ جائے گا، کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. ہم مدنی قافلوں میں مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو کس طرح بیچیں گے؟ مسجد میں تو بیچنا جائز ہی نہیں ہے. بسوں میں یا مسجد کے باہر بستہ لگایا تو وہ بھی پھر نو پروفٹ نو لاس. قافلے کا مسافر بولے گا لوگ دیکھیں گے یہ کما رہا تو شاید اثر اچھا نہیں پڑے گا. ویسے مقامی اسلامی بھائی کو لگاتا ہے نا وہاں اور پیسے لیتا ہے، اس کا حرج نہیں ہے. قافلے کے مسافر نہ لگائے، انہیں نفع نقصان نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال اتاری، مہروی کابینہ قافلہ ذمہ دار. الحمدللہ عز و جل 30 دن کے مدنی قافلے میں محرم الحرام 1434 ہجری میں الحمدللہ سفر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اس مدنی قافلے میں مکتبۃ المدینہ کے رسائل نو پروفٹ نو لاس، یعنی نہ نفع نہ نقصان پر الحمدللہ تقریباً 40,000 کے رسائل فروخت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. اور یہ ان کے ساتھ باپا مجھے بھی سفر کی سعادت ملی. اور ایک شخصیت جو تھی انہوں نے زیادہ رسائل وہاں سے خریدے، تو ساتھ انہیں گھر جانے کی دعوت بھی دی. تو ہم نیت کر لی چلیں گھر ان کے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ان میں کافی وہ جذبہ لگ رہا ہے، کافی ان کا ایک ذہن لگ رہا ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنی چاہیے، نیکی کی دعوت کے کام کرنے چاہیے. تو ان کے گھر میں جو ہی وہ کتابیں لے کر گئے تو یعنی گھر میں جیسے خوشی کا سما تھا. کوئی یہاں سے کتاب لے کر بیٹھ گیا، کوئی وہاں کھول کے بیٹھ گیا. ایک ان کا بیٹا جو تھا اس نے فوراً CD کمپیوٹر میں لگائی اور فرض علوم کورس کو سیکھنا شروع کر دیا اس نے. اور مزید انفرادی کوشش کی تو ان کے گھر سے ہاتھوں ہاتھ ان کا ایک بیٹا 12 دن کے مدنی قافلے میں بھی آ گیا ساتھ. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر، راول پنڈی، مہروی کابینہ.
पापा जान ये अर्ज़ है कि बाज़ औक़ात हमारे इस्लामी भाई बीमार हो जाते हैं या एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, हॉस्पिटल में जाएं तो हॉस्पिटल वाला अमला जो है वो ताउन नहीं करता, अगर उनके साथ सख्ती की जाए तो फिर कुछ ताउन की तरकीब बनती है, तो इसमें हमारी रहनुमाई फरमा दें, क्या तरकीब बनाई जाए? जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आम तौर पे इमरजेंसियों में होता है और उन हॉस्पिटलों में होता है कि जहाँ इलाज मुफ्त हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी नौबत नहीं आती होगी, मैं समझता हूँ, कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो अमला होता है वो उनको अलर्ट रहना ही पड़ता है, और मुफ्त में तो थोड़ा बहुत अंधी चलती होती है। तो अपने इन्हीं को पूछे ना कि अब अपना मरीज़ जो है वो बेचारा सिसक रहा है, ज़ख्मी है, उसका खून बह रहा है, और ये अपने अमला है जो लिफ्ट नहीं करा रहा, तो सख्ती करनी चाहिए या नहीं, क्या करना चाहिए? सख्ती करने की फेवर में कौन कौन है? बस मरने दिया जाए उसको जिसका खून बह रहा है, नहीं मरने दिया जाए, सख्ती की जाए, यानी कि नरमी की फेवर में ज़्यादा, समझाने की फेवर में, सख्ती करने में कम है, यूँ है। ये सख्ती करने के हवाले से अच्छा नहीं नहीं, सख्ती में थोड़े थे असल। नहीं, कौन कौन ये कहता है कि उनके साथ सख्ती की जाए? सख्ती के बगैर ये मानते नहीं है। इस सख्ती यही कि हाँ मतलब सख्ती भाई जानते आपकी हो? जिम्मेदारी बनती जानते है, हो हम कौन है? बाहर तो निकलोगे ना, अपनी जिम्मेदारी पूरी किया करो, ड्यूटी पूरी किया करो, रोजी हलाल करनी चाहिए। इस तरह दो चार जुमले तो बोलने चाहिए ना भाई। अगर ये मर गया तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, दम तोड़ गया तो ये खून बह रहा है, तुमको रहम नहीं आता इस पर, है ना? ये सख्ती करनी है ना, इन्हें ये मौके पर शायद कर डालेंगे मगर अभी हाथ नहीं उठाते। जब अपना अजीज दम तोड़ रहा होगा इस्लामी भाई या मुबल्लिग, तो फिर तो दांत ना तोड़ दें यार, ये मतलब मरने देंगे क्या यार उसके? बारह लेके अभी कोई फैसला नहीं हो पा रहा इनसे। तो अब मैं अर्ज करता हूँ कि हमारे बाबुल मदीना में धमाका हुआ था, तो उसमें कोई 60 के करीब अमवात हुई थी, तो ज़ख्मी भी बहुत हुए थे। एक डॉक्टर ने मुझे बताया जो उस वक्त वहाँ ऑन ड्यूटी थे, हैं अपने मतलब, उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो हमदर्दी में सवाब की नीयत से आगे बढ़ा कि यार मैं कुछ ट्रीटमेंट करूं इसका, तो इनके मानने वालों ने ऐसी अड़ाउड़ी और धक्का पील और मारा मारी शुरू कर दी कि मुझ समय सारे डॉक्टर भाग गए और इनके लीडर ने दम तोड़ दिया, वरना शायद हमको ये मौका देते तो शायद ये बच जाते। ये देख लें आप। अब सख्ती की वजह से और भी बात शिकायत कहीं कहीं हैं इस तरह की कि आपके ये दाढ़ी वाले इमाम वाले आकर मतलब बदतमीजियाँ करते हैं जब इनका कोई ज़ख्मी होता है तो, और प्रेशर डालते हैं हम पर, तो हम प्रेशर ग्रुप ना बने। इसका तरीका दूसरा भी है उसको राज़ी करने का। एक तो ये कि मारा मारी करके इलाज करवाया, वहाँ मैं ज़ख्मियों को भी देखने गया था, तो बाज़ उनमें लीडर भी थे। अब जहन तो नहीं बना होता ना सबका, तो वो खुद जो ज़ख्मी पड़े थे वो भी सख्तियाँ कर रहे थे, यार ये ऐसे काम नहीं करते हैं ये, समझे? चंद बार मैं देखने गया था मतलब ज़ख्मियों को, तो बहरहाल ये कि इससे ज़ाहिर है कि असर गलत ही पड़ना है, सही तो नहीं पड़ेगा। और जो अब जो इलाज करेगा वो इसके प्रेशर की वजह से करेगा, दिल से नहीं करेगा, नफ़रत से करेगा। खैर, सख्ती से काम निकलवाने के बजाय, अगरचे बाज़ औक़ात निकल जाता है, सख्ती से काम निकल आता है, लेकिन अगर हम नरमी से करें तो क्या नरमी? बेचारा अल्लाह कितना खून बह रहा है, अल्लाह इसकी सांस उखड़ रही है, आपका भला होगा, मैं पाँव पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आपके दाढ़ी में हाथ डालता हूँ, ठुड्डी में रखते ना, आप प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी करके, या रोना आता तो रो पड़े आप, तो वो ऐसा इलाज करेगा इसका और ऐसा ध्यान देगा कि साथ में आपका गिरवीदा भी हो जाएगा।
सुभान काम अल्लाह। मतलब मारा मारी से भी निकल आता है बाज़ औक़ात, लेकिन जिसके साथ मारा मारी की उसकी अख्तलफियाँ होती हैं, दिल आज़ारियाँ होती हैं, बज़न होता है। वो 4 आदमियों को बताएगा कि इमाम वालों ने यूँ किया, दाढ़ी वालों ने ये किया, सुन्नियों ने यूँ किया। और जब ये आप इस तरह करोगे तो ये जो दूसरे इस तरह करते हैं ना अड़ाउड़ी, उनकी मिसालें देगा कि वो यूँ करते हैं, लेकिन यार दावत इस्लामी वाले तो यार माशाअल्लाह, क्या यार ये बस यार यही है इंसान, बस ऐसी शराफत से यार इलाज करवाते हैं कि हम मजबूर हो गए इलाज कर रहे हैं। ऐसा हमको मतलब इन्होंने अखलाकी प्रेशर डाला कि हम यार हमारी सारी सुस्तियाँ जो थी चुस्तियों में बदल गई। तो वो आपके बारे में अच्छे तासुरात देंगे। तो ये हमारे बाज़ दावत इस्लामी के वो इस्लामी भाई जो ना मदनी मुज़ाकरे सुनते होंगे, ना कोई ज़्यादा कोई तरबियती भी इज्तिमात में आते नहीं होंगे, होते ज़िम्मेदार, बाज़ ज़िम्मेदार होते हैं, बाप के बाप होते हैं बाज़, और उनको हटा भी नहीं सकता बड़ा ज़िम्मेदार, के हटाएंगे तो ग्रुप बनाएगा। ये होते हैं इस तरह के हमारे यहाँ। तो इस तरह के ज़िम्मेदारों का कभी ऐसा मामला हो जाता ना, या कोई मुबल्लिग या ज़ख्मी हो गया, हादसा हो गया, फिर वो जाकर जो गंद मचाता है ना अस्पताल में, वो जो दावत इस्लामी को गालियाँ पड़ती होंगी, इलियास कादरी को जो गालियाँ पड़ती होंगी, तुमको इलियास कादरी ने ये सिखाया, सामने नहीं बोलते इनको इलियास कादरी ने सिखाया, ये है दावत इस्लामी वाले, हमने तो बड़ी तारीफ सुनी थी यार। इस तरह माँ बहन की गालियाँ नहीं निकाली, बाकी हमको बहुत बुरा भला कहा इसने, बद्दुआएं दी हमको। इस तरह मतलब कितना हमारा इमेज खराब होगा। इसलिए कभी भी चाहे सगा बाप हो, कुछ भी हो, ये हड़ाउड़ी नहीं करनी चाहिए। एक केस यूँ प्रॉपर दावत इस्लामी में तो नहीं कह सकते एक्टिव, लेकिन अहले मोहब्बत समझ ले, उनकी बाहर मुल्क का केस है। वालिदा का इन्होंने मरकज़ुल औलिया में गुर्दे फेल हो गए थे तो कुछ ट्रांसप्लांट करवाया, गुर्दा तब्दील करवाया, तो वो बेचारों का जो था वो बहरहाल केस ख़राब हो गया। वो इस्लामी बहन, वो खातून, इनकी माँ जो थी इस्लामी भाइयों की, कई भाई हैं वो, तो वो फौत हो गई। अब एक भाई जो पावरफुल थे, वो मतलब बहुत बिफरे हुए थे, मैं इस डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं, जानबूझकर हमारी माँ को इसने मार दिया, केस ख़राब कर दिया। अब इसके जो भाई दावत इस्लामी के टच में है अच्छे खासे, इन्होंने मुझे कहा कि यार ये भाई साहब को हम तो नहीं समझा पाए, आप बोलेंगे तो ये मान जाएंगे, वरना ये तो बोलते मैं केस करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा, बहुत बिगड़े हुए हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, उसी भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला, और मेरा बड़ा भाई जो है ना बस उसकी घूमी हुई है डॉक्टर पर। तो मैंने उसको समझाया, डॉक्टर ने अपने से पैसे लिए, कोई रियायत भी नहीं की जा रही, पूरी फीस ली, तो कोई डॉक्टर अपना केस क्यों ख़राब करेगा जानबूझकर? उसका इमेज ख़राब हो जाएगा, इसका कारोबार ठप हो जाएगा कि भाई ये डॉक्टर तो बंदा मार देता है। तो हमारी माँ का टाइम पूरा हो गया था, डॉक्टर ने तो यकीनन पूरा जोर लगाया होगा कि मेरा केस ख़राब ना हो, ताकि दूसरे केस इनके थ्रू आए, लेकिन अपने मुकद्दर। तो अब ना इनसे लड़ाई करनी है, ना डॉक्टर को बुरा भला बोलना है, ना कोई केस कबाड़ा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ बोला, आप बोलते हो ना, ठीक, बस खलास, अब मैं कुछ नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह यूँ मतलब मसला हल हो गया समझाने से, है ना। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तर्जमा है कंजुल ईमान, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो अब डॉक्टरों से लोग लड़ते हैं, यूँ कर दिया, यूँ कर, डॉक्टर क्यों मारेगा यार? डॉक्टर की जैसी तैसी बदनामी होती है। किसी डॉक्टर का केस है, फेल हो जाए, एक्सपायर हो जाए ना, आदमी मर जाए, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती होगी। कानूनी तौर पर तो खैर मैंने उसको समझाया कि इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, केस भी करोगे, वो जबकि क्वालिफाइड सर्जन है तो उसका क्या बिगड़ेगा? तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हम खामखा क्यों इस मसले में पड़े और परेशान हो? खैर, इसलिए बहरहाल कभी भी इस तरह का केस हो या इससे मिलते जुलते केस हो, अम्मी का हो, अब्बू का हो, कोई का भी हो, चाहे कारोबारी मामलात में कोई पैसे खा के बैठ गया हो या किसी तरीके से भी हो, हमको नरमी ही करनी है। हमारा जहन बन गया असल कि सख्ती के बगैर नहीं होता, लातों के बुत बातों से नहीं मानते, मैं यूँ कर दूंगा तो यूँ कर दूंगा। इससे मसला अगर हल हो भी गया, आपका इमेज ख़राब हो रहा है, ये आपको नहीं एहसास, आपकी निस्बत दावत इस्लामी से, कि आपकी वजह से दावत इस्लामी को गालियाँ पड़ेंगी। तो इसलिए नरमी नरमी नरमी,
ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اس کو حسن دیتی ہے، زینت دیتی ہے۔ جس چیز سے نرمی نکال لی جائے اس کو بدنما کر دیتی ہے۔ تو جنہوں نے سختی کا ذہن تھا، جن کا وہ مطمئن ہوئے، یا مزید کچھ عرض کرنا باقی ہے میرے لیے؟ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ اگر مطمئن ہوئے تو پھر ایک بار ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم مطمئن ہیں۔ جن کا سختی کا ذہن تھا، بھلے ہاتھ نہیں اٹھائے لیکن سختی کا وسوسہ تھا کہ یار سختی سے کام ہوگا، وہ بھی بھلے ہاتھ اٹھا دیں کہ اب ہمارا ذہن بن گیا کہ کام ہم نے نرمی سے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ تو ہمارا کام، ہمارا اولیاء نہ بھی ہو تو اب یہ کہ سختی میں گناہوں کا اندیشہ بہت زیادہ ہے کہ یہ جو نہیں کر رہا تو بعض اوقات یہ مجبور ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے اپنے مدنی ماحول کے، بلکہ ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہیں اپنے مدنی کاموں کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جن دنوں یہ ایک ہاسپٹل میں ہاؤس جاب پر تھے شاید، تو ایک وہ کتا کاٹنے والا کیس آیا جس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا، 4 انجیکشن اس کو لگانے تھے، اور اگر نہیں لگاتے تو وہ کیس ختم ہونا تھا، مرنا تھا بندے نے۔ اس طرح کا ایمرجنسی میں کیس آیا تھا، اس کے پاس کوئی پائی پیسہ تھا نہیں، غریب آدمی تھا۔ کہا گیا کہ بھائی انجیکشن نہیں ہے، اور مجھے پتا تھا ڈونیشن میں ملے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ڈونیشن میں جو ملے ہوئے ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے لگانا ہوگا، اس کو لگانا چاہیے کہ بیچارہ ایکسپائر ہو جائے گا ورنہ۔ تو پھر بولے وہ جو ہاسپٹل کا جو سب سے بڑا انچارج یا جو بھی بدماش تھا، اس کا فون آیا کہ یہ انجیکشن اس کو نہیں لگانے ہیں، اور یوں وہ بیچارہ بہرحال انجیکشن سے محروم رہا۔ پھر یہ یاد نہیں مجھے اس مریض زندہ رہا، فوت ہو گیا، لیکن وہ بولا کہ یہ رشوتوں، یعنی یہ ہمارے یہاں ایسے عملے ہیں، یہ اپنے بہرحال اب میں کیا اسپتال کا نام تو لینا بھی مناسب نہیں ہے، تو وہ یہ مطلب بیچ دیتے ہیں۔ بولا ڈونیشن کے جو آتے ہیں نا انجیکشن، اس لیے نہیں لگائے کیونکہ وہ بیچ دیے جاتے ہیں۔ وہ انجیکشن پتہ نہیں وہ لاکھ یا پون لاکھ یا اس طرح کا کوئی قیمتی انجیکشن تھے وہ، اس لیے اس کو نہیں لگانے دیا۔ چاہے بندہ مر جائے، ان کو بیچ کے کھانا تھا، تو یہ بیچ کے کھا لیتے ہیں لوگ ڈونیشن کا، چندے گایا ہو۔ تو بہرحال یہ کہ پھر بھی ہمیں تو نرمی ہی کرنی ہے۔ اگر اسی افسر کے پاس کوئی نرمی کرتا، پاؤں پکڑتا، ہاتھ جوڑتا اس کا عزیز، شاید اس کو رحم آ بھی جاتا ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو کہنا یہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس ہے ہی نہیں ڈونیشن کا، یہ کہتے ہوں گے ظاہر، یہ تھوڑی ہوتے ہوں گے کہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم بیچیں گے اس کو، تو کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ایک گناہ کے لیے کئی گناہ اور بھی تو کرنے پڑتے ہیں نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص عیسائی بھائیوں کو بولنے کی اجازت ہے، وہ جنہوں نے وہ رسالے بیچنے کی نیتیں کی ہوئی ہیں، اور جو بھی مائک لیں گے وہ صرف وہ بات کریں گے جس سے سب کو فائدہ ہو۔ اپنا افسانہ چھیڑیں گے تو جارے سب کو اس میں کیا انٹرسٹ، سب کو سیکھنے کو کیا ملے گا، یا کوئی مطالبہ ملاقات کا یا دیوانگی کا، سب کو سیکھنے کو ملے کوئی۔ جیسے ابھی جو مدنی پھول ہم نے سنے، اگر وہ کام کے نہیں تھے تو آپ بول دیں مجھے، ایسے ہی مدنی پھول ہمیں ملتے رہے، ہماری اخلاقی تربیت اللہ کرے ہوتی رہے، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے نا دنیا اور آخرت کے لیے۔ بابا یہی تو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت ساری نیتوں میں سے اسلامی بھائیوں کی نیتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے پاس جا کر ظاہری اور باطنی تربیت حاصل کریں گے، اور یہی مدنی پھول جو ہیں مبلغین کے لیے قیمتی ہیں، یہی شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ظاہر اور باطن کی اصلاح کروائیں۔ باپا آپ نگاہ بھی فرما دیں، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے، ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے، اور اللہ کرے ہم اسی طرح مدنی پھول حاصل کر کے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہیں۔ یہ اتنے کام کے مدنی پھول ہیں کہ اس کی واقعی شکایت ہے کہ ہمارے بعض ذمہ دار وہ جا کے کوئی زخمی ہو جاتا ہے، ایسا کیس آتا ہے نا، ہاسپٹل میں ہڑاوڑی کرتے ہیں،
बदकिस्मती से ज़ाहिर है कभी इतने सारे तो नहीं हैं, लेकिन जो भी अब हम तो थोड़े थोड़े कोई समझा सकते हैं। फिर अल्लाह करेगा तो ये मदनी चैनल पर जब ये गुलदस्ते चलते रहेंगे उन तक भी पहुंचते रहेंगे। हम तो मतलब बच्चे बच्चे को बाखलाक बनाना चाहते हैं। ये बदअखलाकी की वजह से दुनिया और आखिरत दोनों ही का तो नुकसान है, अड़ाउड़ी करने से नहीं। ये हल भी नहीं है मसले का, अपने रो रो को मनाना है। बाबा ये आप नरमी के हवाले से तरबियत फरमा रहे थे हमारी, इसमें बाज़ औक़ात ये वाक़यात इस तरह के सुनने में आते हैं कि जैसे किसी ने कोई हस्पताल में गया और उसने नरमी के साथ बात करने की कोशिश की लेकिन उसका काम नहीं बना, और उसको किसी ने बताया कि फ़लाँ यहाँ पर आया था और उसने बड़ी सख्ती से बात की थी, उसका काम हो गया था, या पिछले को वाक़या ऐसा जहन में होता है तो फिर वो जज्बा बढ़ता है सख्ती करने का, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो कभी कभी ऐसा भी तो होता ना, कभी कभी क्या बल्कि अक्सर सख्ती से काम नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी कि अपना डॉक्टर है और जिम्मेदार है। अब मैं आपको अता पता नहीं दूंगा और आप पहचान लोगे मशहूर डॉक्टर है, तो उसने बताया कि मैं बड़ा था इसीलिए, और बोला शायद वो बच जाते, लेकिन ये इनके आदमियों ने हमको भगा दिया मारा मारी करके। तो ये सख्ती की वजह से, बदअखलाकी की वजह से इनका तो लीडर मारा गया। तो ये हर वक्त सख्ती से काम नहीं निकलता, कभी निकलता भी है तो सख्ती के नुकसानात फिर भी बाकी रहते हैं कि जिसके साथ सख्ती की गई उस पर एक इम्प्रेशन तो ख़राब पड़ा ही पड़ा, मुतासिर तो होना ही नहीं है उसने। फिर बाज़ औक़ात गुनाह भी हुए, सख्ती करेगा तो मुँह से गाली भी निकल सकती है, तौहीन भी हो सकती है, धक्कम-पील भी हो सकती है, हाथ भी लग सकता है, तो कितने गुनाह साथ होंगे। ये आइन मुमकिन है कि बाज़ औक़ात ये करना चाहे लेकिन वो कर ना पाए। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि वो डॉक्टर हमारा इस्लामी भाई है, उसकी ख्वाहिश थी कि इसको इंजेक्शन लगे हो, और उसके बड़े ने मना कर दिया, फ़ोन आ गया उसका कि कॉल आ गई ऊपर कहीं होगा ना, तो क्या नहीं ये इंजेक्शन इसको नहीं लगाना है। अब अगर इस डॉक्टर के साथ सख्ती करेंगे कि तुम लगाओ, तो ये बेचारा क्या करे? अगर बोलेगा कि हमारा ये बड़ा जो बदमाश बैठा हुआ उसने मना किया वरना मैं लगा देता, तो वो फिर हॉस्पिटल में नज़र भी नहीं आता। ऐसी बातों का मजबूरियाँ भी होती हैं नीचे के अमले की। एक तो इन्हें उधर से अलग प्रेशर हो कि भाई इसको घास नहीं डालना वरना तुम्हारा चारा छीन लेंगे हम, और इधर से बेचारे के हामी जो है इनको मतलब दोनों तरफ से पिट रहा है बेचारा। तो इसलिए मेहरबानी करके आप कोई अगर बोले भी ना सख्ती से काम निकल गया है तब भी ना माना करें। जैसे कि डाकू है, शराफत से उसको कोई नहीं देगा, सख्ती से ही देते हैं, काम निकल आता है इनका। सबको पता है काम निकल आता है डाकू का सख्ती से। तो ये काम निकल आना कोई भलाई की दलील तो नहीं है ना, सख्ती से काम निकल आया। गलत ही हुआ, डाकू से मुतासिर कौन है? सभी तो बदजन है, सभी तो बद्दुआएं देते हैं, वो जल्दी जल्दी मर भी जाते हैं डाकू। डाकू का बुढ़ा डाकू आपने शायद देखा नहीं होगा, आमतौर पे ये जवानी में ही या पुलिस मार देती है या अवाम बाजों का पकड़ लेते तो मार मार के मार देते हैं, जान से मार देते, इतना मारते हैं। तो जला देने के वाक़यात हैं अवाम के कि डाकू को पकड़ के जला देते हैं। बाबुल मदीना में, बाबुल मदीना के तो ऐसे बास तो खूनखार अवाम है कि पूछो मत, ये हाथ में आना चाहिए। यहाँ तक कि किसी ने जेब काटी, किसी ने देख लिया वहाँ करके पकड़ा, अवाम को बोला कि इसने जेब काटी। अब जो इसको मारा मारा मारा, इतना मारा कि उसको जान से मार दिया। तो ये अवाम है, अवाम मार देती है। ये बाबुल मदीना का वाक़या है। तो इसलिए इनकी ऐसे जो जराइम पेशा लोगों की उमूमन उम्रें कम होती हैं, दहशत गर्दों की उम्रें बहुत कम होती हैं। उमूमन जवानी में इनको मुखालिफ पार्टियां मार देती हैं या पुलिस मुकाबले में ये मारे जाते हैं, काउंटर फायर हो जाता है, या आप सब जानते रहते सुनते रहते हैं। तो ये इनकी ज़िंदगियां बहुत कम है, सख्ती करने वालों की, बद अखलाकियाँ करने वालों की। इसमें आफियत नहीं है। आफियत नरमी में भले बज़ाहिर हमारा नुकसान हो गया लेकिन हम गुनाहों से तो महफूज रहे। यार मेरे खाए मैंने माफ़ कर दिया, अब मैं भी आप जैसा वो दो चार को ले जाऊं, अड़ाउड़ी कर दूं, नतीजा क्या होगा? नुकसान ही होगा। हमारे एक पड़ोसी ने, मैं मस्जिद में काफिले से कहीं से आया था,
शहीद मस्जिद में जिन दिनों था, तो मुझे बाज़ इस्लामी भाई ने बताया कि वो आपका पड़ोसी आया था फुला, और उसने बोला है कि इलियास कादरी का तो मैं बोर्ड चढ़ाऊँगा, बड़ा अच्छा बनता है, ये यूँ है तो यूँ है। मेरे ताज्जुब हो कि इसको क्या तकलीफ हो गई। वो घर में कुछ हमारे घर की ख़वातीन में, इनके घर की खातून में कोई बोलचाल हो गई होगी, अब क्या वजह अभी तक पता नहीं क्या मसला था। तो ये इस पर ये मेरे पर उसने आके यूँ चढ़ाई की, शहीद मस्जिद में आकर। मैं मौजूद नहीं था, मैंने कहा कि यार ये बेचारा बच गया, कोई जज्बाती इस्लामी भाई होते तो इसको मारते, यार बच के निकल गया। खैर अब मैंने कोई उससे इंतकाम तो लेने का जहन ही नहीं था ना मेरा, वरना 2-4 को ले जाता तो उसको डीप डाल दे, तोड़ फोड़ डाल दे। खैर मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन ये अपने हमारे घर, हमारा वो ऊपर नीचे की मंजिल थी, ये नीचे थे, याद पड़ता हम ऊपर थे, वो बिल्डिंग में फ्लैट हमारा ऊपर था। तो ये एक बार कुछ आदमियों के साथ गली में ये साहब खड़े हुए थे, तो मैंने देख लिया इनको, अस्सलाम वालेकुम। तो उसने यकीन माने जिसको मुंह फेरना बोलते ना, यूं मुंह फेर लिया। मैंने क्या किया पता है, मैं बढ़ गया आगे और इसको मैंने यूं पकड़ लिया। मैंने यूं पकड़ के बोला यार बहुत नाराज हो गए हो यार। मैंने बेतकल्लुफी के अंदाज में ये किया, बहुत नाराज हो। अरे नहीं नहीं इलियास भाई, ना 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 इलियास भाई, हमारे मेमन भाई थे, ना ना इलियास भाई, ना 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 ना। फिर यकीन माने उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोले बस पंजे घरे अचो, बस बोतल पियो। आप माने नहीं माने, वो जो मेरा बोर्ड चढ़ाने निकला था वो मैं ज़बरदस्ती ले गया अपने घर में बिठाया इज्जत से। ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार उसके घर में यूँ मुझे दाखिला मिला, और उसने मुझे बोतल ठंडी मंगा के पिलाई। अल्लाह। अगर मैं सख्ती करता, उसको तोड़ फोड़ करता या गाली गलोच या तड़ियाँ देता उसको, क्या होता? अगर वो मेरी आप लोगों की गैदरिंग से डर भी जाता तो बदजन ही तो होता। अब क्या उसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई होगी ना, जब भी तो ये ले गया बोतल कि यार ये अजीब मखलूक है, इतनी इसके साथ क्राउड है, इतनी भीड़ है, इसके मानने वाले इतने, मैंने इतनी हमाकत की थी कि जाके ये बोल कर आए और ये फिर भी यार मेरी खुशामद कर रहा है। तो नरमी से यूँ काम है फलाह हो कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान गुलाम रब्बानी अत्तारी मेरवी काबीना जामियतुल मदीना रावलपिंडी, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पापा आपकी बरकत से तकरीबन 6-7 साल से रसाले सेल करने का मेरा भी मामूल है। अभी जब बाबुल मदीना में आने की तरकीब हुई, तकरीबन 6000 के रसाले वहाँ मकतबतुल मदीना से लिए और तकरीबन 3500 के आते हुए सेल हुए, और अब बाकी रखे हुए हैं वो भी इंशाल्लाह तो ज़हन है कि इंशाल्लाह वो भी सारे के सारे जाते हुए इंशाल्लाह रास्ते में सेल कर दूँगा। तो इसके अलावा बापा आप मज़ीद बरकत की दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह। बाकी उस दिन आपको पर्ची भी दी थी। आप एक नहीं है ना, इन मुरीदों में कौन कौन मतलब वो मरीद बैठा होगा। मरीद माने सरकश, पंजाब में मुरीद को मरीद बोलते हैं। मरीद के माना सरकश, ये तो कुरानी लफ्ज़ है। शैतानम मरीदा, शैतान के लिए लफ्ज़ मरीद आया ना। मरीद के लफ्ज़ी माना है सरकश। सरकश समझते हैं ना, बागी सरकश। तो मुरीद बोलना चाहिए, मरीद नहीं बोलना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, आपकी बारगाह में ये अर्ज़ है कि आप ऐसी नज़र करम फरमा दें कि हमारे भी कल्ब जारी हो जाए, ताकि हमारा दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। है ना, कल्ब जारी नहीं आपका, वो तो एक ईसाई भाई की मिसाल दिया करता हूँ मैं, जमजम नगर के ही हैं वो। कि इनको किसी ने कहा कि तुम्हारे पीर ने हमारा दिल जारी किया, तुम्हारे पीर ने जारी किया। बोला तुम्हारे पीर ने खाली दिल जारी किया ना, हमारे पीर ने रुआं रुआं जारी कर दिया। ये देखो
तुम्हारे पीर ने ये जारी किया, तुम्हारे पीर ने ये जारी किया, इस तरह उसको खामोश करा दिया। और बोलो चोर डाको आंदे ने नमाजी बन जांदे ने। मैंने उसका जवाब सुनाया आपको। दावत इस्लामी ने क्या जारी नहीं किया यार, खाली मतलब बातें ही करनी है, लोगों बात नहीं करते। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ठाठे मारता हुआ सैलाब है दावत इस्लामी के पास है, और किसके पास है? सुन्नियों का सैलाब तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पास ही है, अल्लाह की रहमत से। ये सब जारी हुआ है तब ना यार, और दिल अगर जारी ना हो तो आदमी मर जाए। बोला हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया, तो कल्ब तो हरकत कर ही रहा है ना अपना, जारी जारी है। किस सहाबी ने दिल जारी किया? सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी का ये जिस तरह का बोलने वाले कल्ब जारी फरमाया? कोई इसकी रिवायतें हमने नहीं पढ़ी। चलो फिर भी अगर मान लिया जाए कि कोई ये जदीद तरीक़ा हो, तो ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब तरीक़ा तो नहीं है ना। ज़िक्र की बहुत सारी अक़साम है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये कल्ब जारी करवाने वालों के पास बाज़ औक़ात आदमी जाता है तो फिर वो जो नमाज जारी थी ना वो ख़तरे में आ जाती है। बहुत सारी सुन्नतें जो जारी होती हैं ना वो रिस्क में पड़ जाती हैं। ये शायद आपको तजर्बा हो या ना हो, है तजर्बा, थोड़ा बहुत है ना तजर्बा, कि वो दिल जारी करवाने के चक्कर में असल जो जारी थे ना जन्नत में ले जाने वाले अमाल, वो उसमें ढीला पड़ जाता है। खाली दिल जारी करने के चक्कर में रहता है। एक दिल जारी करने वाले के पास गया था मैं, किसी वजह से जाना पड़ा, तो यकीन माने उसके बोलने का अंदाज और बुलंद कह के वो मार रहा था जिस तरह, अलमान वल हफीज़, और उसका कंधा जारी था। अब माने नहीं माने, कंधा यूँ फड़क रहा था उसका। एक बार बहुत पहले, इससे भी बहुत पहले, दावत इस्लामी से भी पहले, तो किसी बाबा जी के पास कोई इस्लामी भाई मुझे ले गए, तो वो जो क्वार्टर बने हुए थे, तो वहाँ एक बाबा जी निकले, दाढ़ी पूरी थी उनकी, बनियान चुस्त पहनी हुई थी, कुर्ता नहीं था, बनियान चुस्त पहनी हुई थी, और नीचे पाजामा था या तेबन था, याद नहीं है। बहरहाल उनकी जुल्फ़ें लंबी लंबी थी, कंधों से काफ़ी नीचे, और एक लट जुल्फ़ों की इधर थी लेफ़्ट साइड, और वो फड़क रही थी। दिल उनका जारी था, तो ये जिसको दिल जारी है ना, वो वाकई वो गोश्त का हिस्सा हिल रहा था उसका दिल की जगह का, और वो लट फड़क रही थी। अब मैं तो चूँकि मतलब बाहर शरीयत और फ़तवा रज़विया आला हज़रत का फैज़ था बहरहाल, तो मुझे ये मसला पता था कि ये बाल कंधों से नीचे मर्द के लिए हराम है, औरतों की मुशाबत है। मैं आधा फीसद भी मुतासिर नहीं हुआ ना, सही बात, मैं बिल्कुल, दावत इस्लामी भी नहीं थी, लेकिन मेरी समझ में वो आदमी आया नहीं कि मैंने कहा चलो इसका दिल जारी है, तो ये जो इसने लट लंबे बाल ये हराम इस तरह रखना, फिर एक लट खास इस पर रखना, फिर ये बनियान को चुस्त पहनकर उस पर ये लट आने वाले को दिखाना, व्हाट इज़ दिस? ये मुतासिर करने का अंदाज नहीं है। आदमी छुपाए अपने इस अमल को, आखिर आने वाले को ये सब तमाशा दिखाने की हाजत इसको पेश आई। हालांकि घर में आदमी बनियान पहनता भी है तो बाहर ज़रा कुर्ता और इस तरह तरकीब से आता है, कोई मेहमान आए तो इस तरह आने का मकसद क्या उसका? तो मैं वाकई है ना क्वार्टर परसेंट में मुतासिर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार यकदर गिर और मोहकम गिर, आला हजरत ने किसी का दिल जारी किया या दिल जारी करने के कोई फतावे दिए, दिल जारी करने को तरीके बताए, इस तरह का दिल जारी करना ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। तो अपने तो आला हज़रत के पीछे पीछे, सुभान अल्लाह, लब्बैक। बल्कि गौस पाक की भी कोई ऐसी रिवायत याद नहीं पड़ती कि जिसमें मौजूदा अंदाज में गौस पाक दिल जारी फरमाते हों, हमने नहीं पढ़ी। पढ़ी है आपने कहीं? ज़िंदगी निकल गई, ना सुनी है उलमा से, ना पढ़ी है, ना उलमा अहले सुन्नत ये दिल जारी करने के कोई मसाइल बयान फरमाते हैं कि दिल जारी करो और इस तरह दिल जारी होता है, ना सुना नहीं है मैंने। तो एक तरीक़ा चला रहा है 1400 साल से, लब्बैक। अब यार मुतासिर मत हो यार, आप लोग यार कि बहुत नरम नरम आपकी मतलब दीवार है, तो कील मारो तो भुक जाएगी, और तिनका धक्का तो भी घुस जाएगा। ऐसे नहीं यार, शीशा पिला भी दीवार बन जाओ यार। सुभान अल्लाह, बना दे बाबा, बना दे बाबा। सिर्फ इसमें रज़वियत दाखिल हो। सुभान अल्लाह।
अपने रज़वी छाप कादरी हो ना तो चले अपने को, साथ अत्तारियत की छाप हो तो पापा क्या ही बात है। ये नहीं, साथ साथ नहीं, ये बोलने का मौका नहीं है। सारे मशाइख हमारे रज़वी, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी जो भी हैं, जिन पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की छाप है ना, इस ज़माने में तो वो समझ में ज़्यादा आते हैं अपने को ना। आला भले वो रज़विया सिलसिले में इनकी बैत खिलाफत ना हो, या आला हज़रत को मानते हो, बस आते हैं ऐसे ऐसे चिश्तियों के और आते हैं, सरकार आला हज़रत की शान बयान करते हैं मदनी चैनल पर के दाऊद इस्लामी जी आला हज़रत के मसलक को फ़रोग़ दे रही है, आला हज़रत के मिशन को फ़रोग़, तो अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत मीठे लगते हैं। मेरी एक मजबूरी है कि आला हज़रत का जो नाम लेता है मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुआ फड़ ते मजबूती दे नाल फड़। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दो बेड़ियों में जो पाँव जारी रहेगा, दो बेड़ियों में जो पाँव रखता है ना, दो बेड़ियाँ मैंने दो किश्तियों में, तो वो कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी उसको। वो एक किश्ती ज़रा आगे भी ये हुई तो वो टांग बाहर आई तो डूब जाएगा। दो किश्तियों में नहीं चल सकता, एक नियाम में दो तलवार नहीं रह सकती। तो अपने भले, हमारे आला हज़रत भले, आला हज़रत गौस पाक तक ले जाएँ, गौस पाक अपने नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुँचाएँगे और हमारे आका हमें अपने रब की पहचान करवाएंगे, इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएंगे। सल्लू अला नबी। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पापा जान अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटों में, बसों में और मस्जिदों के बाहर रसायल बेचने की तरकीब थी, तो एक मसला दरपेश हो रहा था कि जब बसों के अंदर रसायल बेचने की तरकीब हो रही थी तो उस दौरान रसायल बेचने के दौरान लोग पैसे देते हैं, यानी कि हमें रसायल बेचने की तरकीब बना रहा हूँ तो लोग पैसे देते थे और रसायल नहीं खरीदते, यानी हकारत की निगाह से पैसे देते थे, हकारत की बिना पर, यानी कि भीख दे रहे हैं जैसे। हकारत तो नहीं कहेंगे इसको, वो यानी कि भीख दे बेचारे रहे हैं समझते हैं कि मौलाना गरीब आदमी है तो मदद करते थे आपकी, जी इस तरीके से तरकीब बनाते हैं। तो मारा नहीं किसी को मुंह पे कि मुझे कोई भिखारी समझा ले तेरे को चाहिए तो मैं दूं। तो कितनों ने दिया आज तक इस तरह आपको पैसे, यानी कई और आप गैरतमंदी की वजह से कारोबार छोड़ बैठे। जी ये हमको तो लोगों ने मक्के मदीने में पेश किए, तो हमने तो मदीने जाना तो नहीं छोड़ा। ये मसला दरपेश हो रहा था। व्हील चेयर पे तो गरीब आदमी समझ कर कितनों ने ऐसी पेशकशें की जिससे आपका दिल टूट गया कि मेरे को रिसाले बेचने ही नहीं है। पापा कई इस्लामियों ने यानी कि कितने अंदाजन, एक आधा पौना कितने, 2-4-5 ने एक आधी हुआ होगा। 2-4-5 ने अपने हाँ, इस्लामी भाइयों ने भी इस तरीके से जो ना चलो दो चार ने अगर किया भी तो अब इसमें कोई यार ये अब धंधा छोड़ दिया आपने, यार मदनी धंधा छोड़ दिया। अजीब आदमी हो यार। अब दोबारा वो कफ़ारा तो इतने अरसे से क्यों नहीं किया? या अल्लाह। हाजी जमजम इससे पेश करे तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत से अर्ज किया जा सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं मतलब अपना बेच के गुजारा करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। इंशाल्लाह हाजी जमजम रहमतुल्लाह जज़ाकल्लाह। करम की भी तो वो दावत इस्लामी से मज़ीद मुतासिर होगा यार। यही ख्वाहिश थी, आखिरी लम्हों तक यही ख्वाहिश थी कि आप रिसाले फ़रोख्त करें। रिसाले क्यों रोक दिया आपने? हाजी जमजम चले गए तो आप भी पीछे से वो हाजी जमजम के इसाले सवाब की भी नियत कर सकेंगे ना पापा। टन हो गए। इंशाअल्लाह अब आप दुआ फरमा दें इंशाअल्लाह रिसाले बेचने की तरकीब। अब ये क्या देखो, इधर से आवाज़ आई थी 7-8 साल से बेच रहे हैं, तो आपने कितने साल तक बेचे? तकरीबन पापा 2 साल तक बेचे। 2 साल। हराया नहीं इनको। पापा मस्जिदों के बाहर लगाने की तरकीब थी, जैसे आप समझ गए, हराया नहीं इसको। ये तो यहाँ आते आते ले गए, लेकर आए, आप लेकर आए यहाँ आते आते बाबुल मदीना, फिर जी नहीं ये तो पंजाब से लेकर आ बेचे और अभी बोलते हैं जाते आते बेचूंगा। मुकाबला सख्त है, आप जीते ही आ रहे। नमगर वाले पापा ले जाएंगे वापसी पे, है ना सफ़र इनका वापसी का। हाँ, ये कर सकते हैं। अब ये शैतान के बाज़ हथियार और दूसरे रिसाले आए, पापा ले जाएंगे इंशाल्लाह। ले जाएंगे ना, नया तो बिकेगा धड़ाधड़ इंशाअल्लाह। बेचेंगे इंशाल्लाह। बाबा जानी एयरपोर्ट पर मुफ्त तकसीम करें तो इसमें कोई हर्ज है? मुफ्त बांटने में हरज तो नहीं है, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है। एक बार हम, मेरा ख्याल है पंजाब में कहीं किसी एयरपोर्ट पे, मरकज़ुल औलिया के एयरपोर्ट पर या पता नहीं, वो पहले हम बांटते थे हवाई जहाज़ में, तो वो बांटे होंगे। तो एक बुढ़ा आया एयरपोर्ट में, उसके हाथ में खौफनाक जादू का रिसाला था।
وہ ہمارے مطلب ایئرپورٹ پہ ملا, ہمارے سامنے قصدن آیا اور سے بولا یہ تم لوگوں نے یہ دیا ہے, یہ لو, چر 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 کر کے پھاڑا تھا, پھینکا تھا. خیر عوام بھی 2-4 جمع ہو گئی, وہ بڈھے سے ہی بدزن ہوئے. ہم قفل مدینہ, ہاں نہیں اس پہ بولنے ایسا تھا نہیں. خوفناک جادوگر غریب نواز کے رسالے سے کون چڑے گا؟ اس میں وہ اپنی سنیت بھری ہوئی تھی نا, حالانکہ قرآنی آیتیں بھی لکھی ہوئی تھی. تو خدا جب دین لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے, مشہور ہے نا, تو آیتیں بھی اس میں تھی, پھاڑ پھوڑ کے ظالم نے زمین پہ ڈالا, یا پتہ نہیں پھاڑ کے ہم کو دیا, بھول گیا ہوں. مرکز الاولیاء میں جہاں میرا قیام تھا, گھر کے غالباً سامنے کسی گلی میں, قبرستان والی گلی, قبرستان والی کوئی گلی میں, میں نے کچرے کے ڈھیر پہ, کوڑے کا ڈھیر ہوتا نا, بجریاں اور یہ جس طرح کا کوڑا پڑا تھا, اس میں رسالے پھٹے ہوئے مطلب ٹکڑے اٹھائے تھے میں نے, اس میں سے پھاڑا تھا کسی نے. آپ تھے کیا ساتھ میرے؟ وہاں وہیں ارشاد فرمایا تھا آپ نے. اب میں نے عرض کیا ہوگا کہ یار دیکھو آج اکیلے دوپہر کو اکیلے تشریف لے گئے تھے, آپ نے دیکھ کے واپس آ کے بتایا تھا. ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ یار آیتیں لکھی ہوئی ہیں, اللہ رسول کا نام لکھا ہے, تو پڑھیں کیسے یار, ہمت کیسے ہو؟ بس یہ اللہ تعالیٰ ادب نصیب فرمائے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اب یہ کہ جن کا دین مذہب اس طرح کا ہوگا تو وہ اس طرح کرتے ہیں. ہمارا مذہب تو مہذب ہے, تہذیب والا ہے, آیتوں کا احترام, حدیثوں کا احترام, اللہ کے ولیوں کا احترام کرتا ہے, صحابہ کا احترام کرتا ہے. بانٹنے میں پھر بھی حرج نہیں ہے. ہمارے رسالے ہیں ہی سستے. عام طور پر جو رسالے بازاروں میں کتابیں ملتی ہیں مہنگی ہوتی ہے. جس کو نہیں لینا وہ مفت بھی نہ بول دے گا. بعض ہوتے ہیں مولانا ہم اس کا ادب نہیں کر سکیں گے, رہنے دیجیے, اس طرح بولیں گے بس. تو جیسا موقع, جیسے کسی نے ایک خریدا تو آپ بولیں گے یار یہ بھی لے لیجئے, چلیے میری طرف سے تحفہ قبول کر لیجئے. یوں بھی مفت دیا جا سکتا ہے, مگر ہوائی جہاز میں نہیں بیچ سکتے. یہ کینیڈا جائیں گے تو بیچنا شروع کریں گے تو پکڑ لے گا آپ کو کوئی. مدنی قافلوں میں نو پروفٹ نو لاس پر بیچنا ہے, یہ ذہن میں رکھیں سب. نفع نقصان کچھ بھی نہیں. نقصان کرنا ہو تو اپنی جیب سے کرنا چاہیں تو کریں, یہ چندے کے پیسوں سے بیچنے کی اجازت نہیں ہے. دعوت اسلامی کا چندہ اس میں صرف نہیں ہو سکتا. اپنے پلے سے یا 2-4 دوست مل کر, اسلامی بھائی مل کر کر سکتے ہیں. یہ باپا جیسے اسلامی بھائی نے بات کی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی پیسے دے دیتے ہیں, اور واقعی یہ بات ان کی درست ہے. کیونکہ کتنی بار ہوتا ہے مجھے بھی کوئی بندہ پیسے دیتا ہے, اب میں پھر اس کو یہ بات بولتا ہوں کہ آپ یہ مجھے اس نیت سے پیسے دے دیں کہ میں ان کے رسالے یعنی کسی بھی لوگوں میں, کسی بھی یعنی بندوں میں یہ رسالے تقسیم کر دوں, ان کے رسالے خرید کے کسی کو فی سبیل اللہ میں تحفتاً دے دوں. تو اس طرح بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اگر کسی نے 10 روپے دیے ہیں یا 50 روپے دیے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 10-20 روپے اور جیب سے نکال کے دے دیتا کہ یہ بھی آپ چلو رکھ لیں. اب ان سارے پیسوں کے آپ یہ رسالے چلو جس میں آپ کا دل کرے آپ وہ تقسیم کر دیں رسالے. کون ایسا کرے گا؟ سارے کریں گے. گھبرا کے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. ایسا نہیں کرو گے؟ کوئی بیچارہ خدا کے پیسے دے رہا ہے. پاپا سیل بھی ہو گئی, لنگر رسائل بھی ہو گیا, 2 فائدے ہو جائیں گے اس سے. تو نہیں تو یہ مطلب بیچارے وہ تائید کوئی نہیں کر رہا, ایسا کھل کے تائید نہیں کر رہا. پاپا ہو سکتا ہے ان کا وہ رسائل سے بیچنے کا ہی ذہن نہیں ہوگا تو اسی لیے نہیں تائید کر رہے. ہاں ان کو سچکا نہیں پڑتا ہوگا, ہاں بھی میری نہ بھی میری, کہیں تائید کر کے نہ پھنس جاؤں, یا انکار کروں گا تو بھی کہیں پھنس نہ جاؤں. آپ کی بارگاہ میں پھنس رہے ہیں. اب دیکھو اونٹ کس کروٹ قبول بیٹھتا فرما ہے. لیں پاپا, قبول کر لیں. تو اس طرح خوش طبعی میں بوریت بھی کم ہوتی ہے نا, نیند بھی اڑ جاتی ہے. جیسے مدنی کسوٹی, یہ نیند اڑانے کا ایک معجون ہے. یہ سبحان اللہ. اب میں لیٹ شروع کرتا ہوں تاکہ یہ بیٹھے رہے اس بانے, یار ابھی مدنی کسوٹی یار تھوڑا یار ٹیڑھ ہوگی, ابھی ہوگی میں شروع میں ہی کر دوں. میں تو دلچسپی اس میں ہوتی ہے, پھر اطراف میں آنا جانا, پھر وہ ایک دم یعنی کہ بالکل گڑ جاتے ہیں کیل کی طرح, کوئی نہیں جاتا, یاد نہیں پڑتا اٹھ کے جاتا ہو, سب سیٹ رہتے ہیں. بار میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں حاضر تھا.
तो वहाँ से कोई पार्टी गुजरी, उनके साथ एक जमजम नगर के इस्लामी भाई थे जो उनके पास काम करते थे, तो उनको मैं जानता था। तो वो मेरे पास आए कि वो मेरा फलां जो बॉस है या सेठ है उसने आपको ये 500 रियाल तोहफे में पेश किए। और वो मिला नहीं मुझसे, या पता नहीं हाथ मिला के आगे बढ़ गया और फिर उसने ये पैसे भिजवाए 500 रियाल। तो हमने क्या किया, मेरे साथ एक और बहुत समझदार इस्लामी भाई साथ में थे, तो हमने मशवरा करके 500 रियाल में मज़ीद 12 रियाल शामिल करके उसी इस्लामी भाई को कहा कि अपने बॉस को अब मेरी तरफ से तोहफा दे दो। उसने कहा ये क्या हो, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा मालदार है। तो मान नहीं रहा था। मैंने कहा तुम दे तो दो, दावत इस्लामी का फ़ायदा होगा। दावत इस्लामी का फ़ायदा होगा? हाँ, मैंने कहा इंशाअल्लाह। तो ये उसको 512 इसने दे दिए, बात आई गई हो गई। फिर एक दो दिन में एक हाई रूफ हमें ढूंढती हुई आई और उसमें एक ड्राइवर था और एक जमजम नगर के दूसरे इस्लामी भाई थे। वो भी ताज्जुब कर रहे थे कि यार ये सेठ जो है ना ये बड़ा दीवाना हो गया और बहुत मतलब है ना, हमको गाड़ी भेजी है कि जब तक इलियास रहे गाड़ी इसके पास रहेगी, इसको इस्तेमाल करे और ड्राइवर भी, बंदा भी साथ, ज़ियारतें वगैरह करवाओ इनको। तो फिर वापसी में जब मदीने शरीफ से सीधा अपने पास ले आओ, इधर इसको ठहराएंगे हम 11 इस्लामी भाई थे कुल। वो उम्रे का वाक़या है। गालिबन उम्रे का वाक़या है। खैर, तो वो दीवाना बहुत था ड्राइवर, वो तो हमको बद्र की हाज़िरी करवाई उसने, मैदान बद्र की। हालांकि वो किराए की गाड़ियाँ आमतौर पर नहीं ले जाती, वहाँ पाबंदी है, मगर इनकी तो गाड़ी का कोई ऐसा होगा नहीं हिसाब किताब, रास्ते भी देखे थे उसने। और वो दीवाना बहुत था ड्राइवर जो था, पंजाबी था, वो बहुत दीवाना था, पंजाबी था, नक्शबंदी था, लेकिन बहुत दीवाना था। खैर, तो यूँ हम मतलब मदीने की ज़ियारतें की, काफ़ी हमारे किराए बचे। फिर कम से कम किराया मदीने शरीफ से लेकर जद्दा तक उन दिनों 50 रियाल होता था। तो हम 11 इस्लामी भाई थे, तो हम तो बगैर किराए के पहुंच गए। तो यूँ 550 रियाल की ये बचत हो गई। 512 देने में वापस हमारे 12 रियाल ही गए ना, 500 तो उन्होंने दिए थे, 550 रियाल की ये फिर सहूलतें, बदर की ज़ियारत, तो बहुत मतलब मैंने कहा आसानी हो गई। अपनी गाड़ी होती है। अब वहाँ इसने पुरतकल्लुफ़ दावत की हमारी, और फिर ये अलग लेकर मेरे को इस सेठ साहब थे बैठे, चक्कर क्या, तुमने मेरे पैसे कबूल क्यों नहीं, वापस क्यों दे दिए? अपना छोटा भाई समझकर कुछ कबूल कर लो। मैंने कहा अब आपको देखना ही है तो आप हमारी दावत इस्लामी को दे दें मदरसे, और यूँ थोड़ा तारुफ करवाया। मुझे ठीक है क्या, मैं 1 लाख रुपए पेश करूँगा। तो मैंने कहा क्या रियाल? बोला नहीं, पाकिस्तानी। तो यूँ वो उसने दिए होंगे, अब मुझे भूल गया हूँ मैं उमूमन चंदा हाथ में पकड़ता नहीं हूँ, एहतियात करता हूँ। तो ये फिर एक बार उसका पैगाम, फिर हमारी थोड़ी अलग सलग हो गई उनसे। बाबुल मदीना आते तो मेरे से मिलते थे, वो आके 1-2 बार मुलाकात भी की। थे बाबुल मदीना ही के, थे बड़े आदमी। एक बार इसका पैगाम मिला कि अगर इलियास जद्दा आकर मेरी दावत खाए तो मैं 25 लाख दूंगा मदरसतुल मदीना को। मैंने कहा 25 दावतें खाऊंगा इसकी यार, पैसे देता हो तो कहीं। तो उनमें याफुर, हाजी याफुर थे, जद्दा गए थे हम लोग। और वो थाल में जो चावल का स्टाइल, और जो पता नहीं पूरा बकरा था, आधा बकरा था, क्या था, वो बेहतरीन चावल थे, कोई अरबी स्टाइल के, वो हमको खिलाए उसने। और बहरहाल फिर 25 तो नहीं दिए उसने, 10 लाख दिए बाद में, यानी कि थोड़े थोड़े करके 10 लाख मौसूल हुए इसके बाप के, 10 लाख भी। तो यूँ मतलब 500 रियाल मेरे कबूल ना करने पर ये। एक बार मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी रकम देखी कि एक इस्लामी भाई आए मेरे पास, ये आपके पंजाब के थे, बैग भर के लाए।
बैग भर के मुझे दिया। मैंने कहा इसमें क्या है, मैंने खोल के देखा तो नोटों के बंडल थे। उसने कहा 5 लाख रुपए हैं। तो कांप गया, मैंने इतनी रकम तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी जिंदगी में। ये बहुत पुरानी बात है। उस 5 के तो अब मेरा ख्याल 50 हो गए होंगे, इतना रेट बढ़ गया है। वो पैसे हमारे इतने नीचे आ गए। तो मैंने कहा ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो सांप बिच्छू है, मेरे को नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी नहीं खिलाऊंगा ये, उठाओ। अब इसने जब देखा कि मैं नहीं ले रहा, मैंने धकेल दिया उसके। तो कहने लगा कि वो ऐसा करो कि आप दावत इस्लामी के लिए कबूल कर लें। तो फिर फ़ौरन मेरे जहन में आया कि ऐन मुमकिन है कि इसके ये अब आप इसको, ये आपके लिए मदनी फूल है, रिसाले के ताजिर के, कि इसके दिल में ये हो सकता है ख्याल आए कि इसने डायरेक्ट कबूल करने में ये शर्माया, तो वो दावत इस्लामी के नाम से इसने ले लिए। कोई बात नहीं, इसी को देने थे अपने को। तो मैंने उससे क्या कहा, ठीक है दावत इस्लामी के लिए कबूल है, आप अपने शहर में फैज़ान मदीना की अपने को वैसे ज़रूरत है। उधर उस वक्त फैज़ान मदीना की कोई तरकीब थी ही नहीं, प्लाट भी नहीं लिया था। गालिबन यही कहा उसको कि आप यार उसकी कोई तरकीब कर दें, उसमें लगा दें ये रकम। तो उसने मज़ीद 5 डाले, 5 लाख, वो 10 लाख बयाना दिया। जब ये कि प्लाट पास हुआ, आज वहाँ आली शान फैज़ान मदीना कायम है, जामियातुल मदीना कायम है, बहुत कुछ मदनी काम हो रहा है। उसका नाम मरकज़ुल औलिया है, वो कहना का मदनी मरकज़ अपना। बापा की अजीम शान हिकमत अमली कि उस वक्त दावत इस्लामी के पास रकम का तस्वुर भी नहीं था। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में 5 लाख पहली बार देखे थे, इतनी बड़ी रकम और मेरे हाथ में आ गई। मैं डर गया, यार ये क्या मुसीबत है, उठाओ इसको। फिर अगली किस्त में बाबा फिर और बहुत रकमें दी इन्होंने, 50 वाह 50 लाख, बहुत रकमें दी। अब तक खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इनके यहाँ रहा मैं, और बहुत बहुत खिदमत करते हैं। अब भी बेचारे बहुत मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पापा की हिकमत अमलियाँ माशाल्लाह। तो ये पैसे ले लेता तो बदजन ना भी होते तो शायद इतना करीब भी ना आते, समझे भाईजान। तो ये आप पर भी ऐन मुमकिन है कि कोई सोचे कि ये मौलाना डायरेक्ट लेते हुए शर्माता है, तो ये बांटने के नाम पर इसने ले लिए, तो खुद ही बोल दे कि मैं यूँ कर लूँगा, बांट लूँगा। भले गरीब आदमी है बेचारा, लेते हुए शर्माता है, मुअज़्ज़ज़ आदमी है, तो यूँ सही। तो ये इस तरह ना लेवाए मेरे चांद, इस तरह ना लिया करें। दाराबाद का भी वाक़या है, एक शख्स ने तहाइफ पेश किए थे और आपने वापस भिजवाए थे, फिर उन्होंने भी लाखों लाख पेश किए थे दावत इस्लामी को। एक और इस्लामी भाई जो हज के लिए आए थे, उस साल सफ़र नहीं हो सका था, उन्होंने डॉलर पेश किए थे, आपने उनको भी वापस की और पर्ची लिख के दी, मुझे आपकी रकम की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है। वो भी माशाल्लाह पूरा घराना दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तरक्की बनी। तो बेशुमार वाक़यात ये हिकमत अमलियाँ हैं। और मैं इत्तेफाक से यूँ कहिए जो कहिए, मैं बहुत शर्मीला वाक़या हूँ, आपको ताज्जुब होगा हकीकत में। यानी इस तरह पैसे पकड़ते हुए, चंदे की रकमें बड़ी बड़ी पकड़ते हुए मुझे बहुत शर्म आती है। कभी कोई मतलब आकर देता भी है ना बड़ी रकम, तो कोशिश करता हूँ कि मैं इसको दे दूँ, उसको दे दूँ। फिर कोई काबिल एतमाद साहिब नज़र आता है, उसको दे देता हूँ कि यार तुम ये ज़रा पहुँचा देना। अक्सर मतलब ये मेरा अमल है, इसमें शर्माता हूँ, डर लगता है मुझे कि कहीं इसको कोई वसवसा ना आ जाए, पता नहीं इसने पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। फिर कोशिश करता हूँ कि किसी तरह उसको रसीद भी पहुँच जाए दावत इस्लामी की। ये बड़ी रकमों की बात कर रहा हूँ कि मुझे 150 आकर चंदे के लिए कम ही देगा आदमी, और उसमें वसवसा भी कम आएगा। इसको बड़ी रकम में वसवसा ज़्यादा आ सकता है, मगर आपका कद जो है ना वो 50 रुपये में भी उसको वसवसा आ सकता है। अपना अपना कद की बात कर रहा हूँ। मेरा इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक इमेज बना हुआ है, तो वो सोचेगा ये 25-50 रुपये थोड़ी खाएगा, वल्लाहु आलम। तो अपनी ज़ात के लिए नजराने कबूल कर भी लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करता, कभी कर लेता हूँ, कभी टाल देता हूँ। ये अपनी हया की वजह से बस शर्म आती है मुझे। एक पार्टी ने मुझे बहुत पहले बताया था, उसने भी कोई रकम भिजवाई थी मुझे, वापस दे दिए थे, 1 लाख या 2 लाख पता नहीं कितने थे।
تو ایک بار اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اسی لیے تو مانتے ہیں کہ آپ پیسوں کو نہیں پکڑتے. سنا دیا میرے کو, یہ صحیح کرتے ہو, پیسے پکڑنا مت کبھی. ہمارا میمن بھائی تھا, میمن بازوں کا بہت چالاک ہوتے ہیں کہ دیکھ کر بھی آزماتے ہیں ہم کو. پیسے پکڑنے کی ترکیب نہ کیا کریں آپ, احتیاط فرمایا کریں. انشاءاللہ. اب بالکل انجان آدمی یار, وہ کیا سوچے گا. یہ بھی رسک ہوتا ہے کہ اس بہانے بھی اس نے مجھے زبردستی بیچے. یہ بزنس ٹیکٹ ہے, تو اس کو بول دیا جائے کہ آپ خود ہی خرید کر, یا آپ مہربانی کر کے اپنے عالمی مدنی مرکز فلاں ہے تو وہاں آپ چاہیں تو چندے میں ڈال دیجئے. یوں کر کے کوئی حکمت عملی ہو. اب موقع, محل اور آدمی کی شناخت ہونی چاہیے. ہر ایک کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ کس سے لے آدمی, کس سے نہ لے. ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اوکے, اتفاق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ملاقات یہ نگاہوں سے بھی ہو رہی ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں, آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ملاقات ہو بھی گئی, ایسے نہ بھی ہوئی ہو نا, ہو تو چکی ہے الحمدللہ. ایسی بیماری نہیں, آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوا ہوں, لیکن آپ کو بھی نزلہ ہوا ہوگا کبھی. تو موڈ مطلب اب پھر ہاتھ ملانا, پھر اس کا ہاتھ کھینچنا کسی کا, اب وہ چھینک آ رہی ہے, اس کو کیسے روکے آدمی, آزمائش ہو جاتی ہے. تو دل نہیں لگتا ملاقات میں. قیامت میں بس بچا لینا میرے کو یار, آپ رحم کرنا مجھ پر. قیامت میں بس کوئی تکلیف نہ ہو, قبر میں تکلیف نہ ہو, نزع میں تکلیف نہ ہو. یہ تکلیفیں تو راحتوں کا بیش خیمہ ہوتی ہیں. بیماری تو رحمت ہے, یہ ایسی بیماری نہیں ہے. واقعی نزلہ تو چھوٹی بیماری ہے, کئی امراض کا علاج ہے اس میں. 55 بیماریوں کا مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے کہ نزلے سے 55 بیماریاں دور ہوتی ہیں. ہمیں تو معمولی سی ہو جائے باپا, سردی لگ جائے درس چھوڑ دیتے ہیں باپا, قافلے میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی طبیعت دیکھ رہے کل سے لگے ہوئے ہیں باپا, ہم تو قافلے میں سفر پہ بھاگ جاتے ہیں. درس جوان ہے نا, ان کو ابھی زندگی کی ہوگی نا کہ ابھی تو یار بہت باقی ہے. میں بالکل قبر میں پاؤں لٹک گیا, اب گیا کہ اب گیا, اللہ اب سلامت گیا کہ رکھے, اب گیا. آپ کو سلامت رکھے تو اس باپا. لیے حرص بڑھانی چاہیے, سبھی کو حرص بڑھانی چاہیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں. میرے سامنے کئی جوانوں نے دم توڑے ہی, روز ہی مر رہے جوان. ہمارے لیے دیکھیں یہ بھی سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ امیر اہل سنت میسیجز بھی آ رہے ہیں, کئی اسلامی بھائی میسیج کر رہے ہیں, پیغامات دے رہے ہیں کہ باپا کی طبیعت پوچھ لیں, باپا کی طبیعت پوچھیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ, خیر ہے یار کوئی بات نہیں, معمولی سی بات ہے. یعنی ماشاءاللہ مدنی کام کرنے کا جذبہ اور اسلامی بھائیوں کے بیچ میں بیٹھنے کا جذبہ, مدنی پھول نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ, ماشاءاللہ دیکھیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. جذبے والا میرا پیر, ہمت والا میرا پیر, امام والا میرا پیر, زلفوں والا میرا پیر, چادر والا میرا پیر, کرتے والا میرا پیر, پیارا پیارا میرا پیر, سونا سونا میرا پیر, میرا پیر میرا پیر, میرا پیر میرا پیر, میرا پیر میرا پیر, میرا پیر بس میرا پیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ خیر بابا اللہ جان, آپ وبرکاتہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات شریف جس آیت مبارکہ سے ترکیب بنائی, تخریج, جی جی, تو وہ میں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیسے. اصل وہ علم ابجد, علم ابجد یہ بھی ایک علم ہے. جیسے الف کا 1, با کے 2, جیم کے 3, دال کے 4 حروف ہے نا. تو یہ ابجد, حوض, ہوتی, اس طرح مطلب ہے کہ یا تک ہے یہ. اب اس کے ابجد سے وہ ایک حرف جو بھی لفظ ہے اس کے حروف نکالے جاتے ہیں. جیسے اللہ, اللہ کے ابجد سے 66 حروف بنتے. محمد اس کے ابجد کے اعتبار سے 92 عدد بنتے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
अपने विसाल की तारीख बताया ना आपने, विसाल की तारीख एक आयत से कि जिस सिन में आपने वफात पानी थी वो अल्लाह ताला ने आपको इससे इत्तला फरमाई। तो इन्होंने एक आयत करीमा वो मतलब मुंतखब फरमाई कि जिसमें जन्नत में और जाने का तस्करा है, जन्नत की नेमतों का। कि आपकी जो सिन थी वो 1340 हिजरी थी ना वफात की, तो उस आयत मुबारका इल्म अबजद से के हिसाब से उस आयत के 1340 अदद बनते हैं। तो यूँ मतलब ये तकरीज फरमाई। तो ये आला हज़रत की करामत भी है कि आपको पता चल गया था कि मैंने किस सिन में वफात पानी है। वफात से पहले ही आपने ये आयत इरशाद फरमा दी थी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब। प्यारे बाबा जान, कोई हमें ऐसा तरीका बताएं कि फ़िक्र मदीना में इस्तिकामत मिल जाए, सुस्ती ख़त्म हो जाए, हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। जो काम बार बार करते रहे ना तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है, इस्तिकामत के असबाब हो जाते हैं। पहले ज़बरदस्ती करना पड़ता है, फिर वो तरकीब बन जाती है। जैसे गाड़ी नहीं ली तो इसका कुछ होता है ना कि 1000 किलोमीटर या इतने 1000 किलोमीटर उसको चलाना होगा पहले, तो भाई इस पर वज़न ज़्यादा नहीं होगा तो डबल सवारी नहीं होगी, तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। फिर जब ये रवा हो जाती है तो फिर बस चल पड़ता है। तो रवा करने में तो थोड़ी आजमाइश तो होती है ना, तो आप फिक्र मदीना रमा हो जाएगी तो फिर आसान हो जाएगा। बाबा नजर करम फरमाए तो वहाँ फरमा दीजिए, सुस्तियाँ ख़त्म हो जाए, मदनी काम में दिल लग जाए। जज्बा सही होगा तो असबाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह।